गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ के हनीकॉम्ब में लास्ट चैप्टर में हमने बाइसिकल इन गुड रिपेयर जो है यूनिट जो है उसके बारे में देखा था, उसकी स्टोरी जो है वो पढ़ी थी। तो आज हम उसके अंदर वर्किंग विद द टेक्स्ट यानी कि जो क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिड द फ्रंट व्हील रियली वॉबल? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। जो फ्रंट व्हील जो है वो सच में वॉबल जो है वो हुआ था, अगर यस तो उसका आंसर दीजिए। तो द फ्रंट व्हील वॉबल्स occasionally but it didn't require any attention. The bicycle was in good condition and the another was pleased with it. यानी कि बाइसिकल जो है वो सही थी लेकिन उसे जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट इज इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसिकल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल्स शेड, कि जब वो वापस आए तब उसे बाइसिकल जो है वो कैसी हालत में दिखाई दी। तो व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड हिज फ्रेंड हैड ऑलरेडी टेकन आउट द फ्रंट व्हील ऑफ द बाइसिकल। बाइसिकल जो है उसका फ्रंट व्हील जो है उसने वो निकाल दिया था। हिज फ्रेंड वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द व्हील बिटवीन हिज लेग्स. He was playing with the wheels while the other part of the bicycle was laying on the gravel path beside him. Next, number 3. Nothing is easier than talking of the gear case. Comment or none or continue this sentence in the light of that actually happened. कि ये जो है वो सच में हुआ था, तो क्यों? Nothing is easier than talking of the gear case but it is an impossible task to fix it back. तो gear case जो है उसे फिक्स करना इम्पॉसिबल है। The author's friend took out the gear case easily but he was not leaving a night matter in putting it back its place. लेकिन उसे अपनी जगह पे वो रख सकते नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव? तो चेन जो है उसे रिसीव करने के लिए क्या किया गया था? तो ऑथर्स फ्रेंड टाइटन इट टू अन एक्सटेंट दैट इट डिडंट मूव एट ऑल. ही देन लूजनड इट until it was twice as loosened as it was before. कि पहले उसने इतना टाइट बांधा था कि जिससे चेन जो है वो मूव नहीं हो सकती थी और उसके बाद लूज किया जाए जैसे कि वो ट्वाइस जो है वो हो सके। The friend has two qualities. He know what is he doing and is absolutely sure it is good. Find the two perhaps in the text which mean the same. उसका मीनिंग होता है वैसे ही ऐसे दो perhaps जो है वो लिखो। तो फर्स्ट है चेरी कॉन्फिडेंस और दूसरा है inexplicable hopefulness. Now describe the fight between the man and the machine. Find the relevant sentences in the text and write them. तो जो फाइट है बिटवीन मैन एंड द मशीन, मशीन और मैन जो है उसके बीच में फाइट जो है वो कैसी थी? तो द बाइसिकल वॉज इन गुड कंडीशन बट द अदर्स फ्रेंड unnecessarily tramped with it. He first took out front wheel and then the gear case. His next victim was the chain. He really had a tough time in fixing this part back into their places. Then he lost his temper and tried bailing the bicycle. I was glad to see show spirit and the subsequent proceeding degenerated into little else than a rough and tumble fight between the friend and the machine. One moment the bicycle would be on the gravel path and he on top of it. The next the position would be reverse. He on gravel path and the bicycle of him. Now he would be standing flush with victory, the bicycle form fixed between his legs, but his trump would be short-lived. By a sudden quick movement the bicycle would free itself and turning up to him hit him sharply over his head with one of its handle. Now वर्किंग विथ लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है उसके साथ साथ उसका आपको दिया गया है। फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं उसे रीड करो। We should go for a long bicycle ride. I also too
have been formed, we mustn't lose any of them. I suggested that he should hold the fork and that I should wendle in wind. The words in इटैलिक आर मॉडल एलॉक्सिलरीज। तो मॉडल एलॉक्सिलरीज जो है उसके इटैलिक वर्ड जो है आपको दिए गए हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज विथ वर्ब्स और टू एक्सप्रेस नोशंस सच एज पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी जो है उसे दर्शाते हैं। परमिशन, विलिंगनेस, obligation, necessity, etc. Should, must and although to generally express moral obligation, necessity and desirability. Look at the following. We should go on a holiday. Suggestion: it is good idea for us to on a holiday. He is not too well these days. He must see a doctor before he comes worse. Compulsion or necessity: it is absolutely essential or necessary for he is to see a doctor. You although to listen to me. I am well over a decade older than you, more emphatic than should. Since I am older than you, it is advisable that you listen to me. Not should and although two are often used इंटरकेबली। तो ये दोनों जो है वो उसके अंदर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, रीराइट ईच सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन यूजिंग शुड, ऑल्दो टू, मस्ट इन प्लेस ऑफ द इटैलिक वर्ड, मेक अदर चेंजेस व्हेन एवर नेसेसरी। तो यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं उसका यूज़ करो और उसे चेंजिंग करो। तो यू आर ऑब्लिग टू डू योर ड्यूटी इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो इसके अंदर जो इटैलिक वर्ड है आर ऑब्लिग, तो इसकी जगह पे आएगा ऑल टू। तो यू आर टू डू योर ड्यूटी इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंस। यू विल डू वेल टू स्टडी एट लीस्ट फॉर एन हॉर एवरी डे। तो विल डू वेल, टू जो है इसकी जगह पे यहाँ पे आएगा शुड। तो पूरा जो सेंटेंस जो है वो आएगा यू शुड स्टडी एट लीस्ट फॉर एन हॉर एवरी डे। द डॉक्टर सेज इट इज़ नेसेसरी फॉर हर टू स्लीप एट हर एवरी नाइट। तो यहाँ पे जो इट इज़ नेसेसरी फॉर, तो इसके अंदर आएगा मस्ट। द डॉक्टर सेज शी मस्ट स्लीप 8 hours every night. It is right that you show respect towards elders and affection towards youngsters. तो इसके अंदर जो इट इज़ राइट जो है उसके बाद यहाँ पे आएगा ऑल्दो। तो यू आर टू शो रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स एंड अफेक्शन टूवर्ड्स यंगस्टर्स। नेक्स्ट इज इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी एक्सरसाइज रेगुलरली। तो इसके अंदर यू स्टे हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। तो वांट टू स्टे जो है इसके यहाँ पे आएगा शुड। इट इज़ गुड फॉर यू टू टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे है गुड फॉर यू, तो इसके अंदर आएगा शुड। यू शुड टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग। इट इज़ स्ट्रांगली एडवाइज दैट यू डजंट स्टैंड ऑन योर हेड। तो इट इज़ स्ट्रांगली एडवाइज जो है तो इसके अंदर आएगा मस्ट नॉट। You must not stand on your head. As he has a cold, it is better for him to go to bed. तो यहाँ पे आएगा should. As he has a cold, he should go to bed. Next is use should, must, or to
एप्रोसिटी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो जहाँ पे जो वर्ड आता है उसे वहाँ पे लिखो। फर्स्ट है पीपल हु लिव्स इन ग्लास हाउसेस, यहाँ पे लिखो शुड नॉट थ्रो स्टोन। यू वाइप योर फीट बिफोर कमिंग इन टू द हाउस स्पेशली ड्यूरिंग द रेन्स। तो यहाँ पे मस्ट। यू ब्लैक डू वॉट द टीचर टेल्स यू। तो यू मस्ट डू what the teacher tells you. The pupils were told that they should write more neatly. Sign in front of a park. You must not walk on the grass. You ought to as ashamed of yourself having made such an remark. He left home at 9 o'clock. He should be here any minute. Whatever happened to the chocolate cake? How should I know? I have just arrived. तो उसके बाद है टू और मोर सिंगल सेंटेंसेस कैन बी कम्बाइंड टू फ्रॉम अ सिंगल सेंटेंस। एक से ज़्यादा जो सिंगल सेंटेंस है उसे यहाँ पे कंबाइन किया गया है। आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज विथ माई सेल्फ। दिस सेंटेंस इज इन फैक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंस। यहाँ पे दो सेंटेंस जो है उसका कॉम्बिनेशन किया गया है। आई मेड एन एफर्ट, आई वॉज प्लीज विथ माई सेल्फ। नाउ रीड दिस सेंटेंस। ये दोनों जो है उससे कॉम्बिनेट करो और अब ये देखो। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड टेक इट। दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस। तो ये जो है वो दोनों दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है। आई डिड नॉट सी इट एंड वाई शुड ही टेक इट। Divide each of the following sentences into its parts. Write meaningful part. It necessary supply a word or two to make each part meaningful. तो ये जो सेंटेंस है इसे मीनिंगफुल बनाने के लिए दो पार्ट जो है उसे अलग अलग करो। तो आई वेंट टू द टूल शेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, तीन पार्ट के अंदर। व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, टू पार्ट। वी मे एज वेल सी what's the matter with it, now it is out, three part. He said he hoped we had got them all, three part. I had to confess he was right, यहाँ पे है टू पार्ट। तो इसके अंदर आंसर जो है वो फर्स्ट जो है तो इसके अंदर आएगा तीन पार्ट में। आई वेंट टू द टूल शेड, आई वेंट टू सिट एंड व्हाट कुड आई फाइंड। नंबर टू के अंदर टू पार्ट है। आई केम बैक एंड ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। उसके बाद नंबर थ्री जो है इसके अंदर भी तीन पार्ट है। फर्स्ट है वी मे एज वेल सी, सेकंड है व्हाट इज़ द मैटर विथ इट एंड नंबर थ्री नाउ इट इज़ आउट। नेक्स्ट है थ्री पार्ट। ही सेड, ही होप, वी हैड गॉट देम ऑल। और नंबर फाइव के अंदर दो पार्ट है। आई हैड टू कन्फेस, ही वॉज राइट। नेक्स्ट इज en acts as a prefix put at the beginning और as a suffix put at the end to form new words। यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं उसे प्रीफिक्स और सफिक्स यानी कि आगे और पीछे जो है उन्हें लगा के नए वर्ड जो है वो बनाओ। तो en प्लस कवरेज तो अनकवरेज, वीक प्लस en तो वीकन। en at the beginning or at the end of a word is not always a prefix or suffix. It is then an इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्ड। कभी कभी ये जो है वो प्रीफिक्स भी नहीं होते और सफिक्स भी नहीं होते, लेकिन वो जो है वो वर्ड जो है उसका ही एक पार्ट होते हैं। नाउ अरेंज द वर्ड गिवन इन द बॉक्सेस अंडर द थ्री हैंडलिंग प्रीफिक्स, सफिक्स एंड पार्ट ऑफ द वर्ड। तो यहाँ जो वर्ड है उसे प्रीफिक्स में, सफिक्स में और वर्ड का पार्ट जो है उसके अंदर डिवाइड करो। इनकरेज, बैरन, फास्टन, इवन,
डैम्पन, इंडेंजर, इनक्लोज, इनेबल, लिसन, सॉफ्टन, वीकन और इंक्लेव। तो en प्रोफिक्स के जिसके आगे प्रोफिक्स लगाया गया है वो सफिक्स के जिसके पीछे वर्ड लगाया गया है और जो वर्ड का पार्ट है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे इनकरेज जो है तो यहाँ प्रीफिक्स के अंदर लिखो। उसके बाद जो इंडेंजर, नेक्स्ट इज इनक्लोज और एनेबल। अभी है सफिक्स के जिसके पीछे लगाया गया हो तो इसके अंदर आएगा डैम्पन, नेक्स्ट है सॉफ्टन, फास्टन, और वीकन। नाउ en पार्ट ऑफ वर्ड, जो वर्ड का ही पार्ट हो ऐसे वर्ड। तो यहाँ पे लिसन, बैरन, इवन और इनक्लेव। तो ये वर्ड जो है वो खुद ही वर्ड का एक पार्ट है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम गार्डन स्नेक जो है उसके बारे में पढ़ेंगे।